ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਥੀਏਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਯਾਤਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਲਵੰਤ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਮਿਲਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਲਵੰਤ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੋਗਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਗਰੀ ਚ ਬੋਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ there may be lot of viewers emotionally attached to the language and all. I don't want to disrespect the language. So ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਲਾਈਕ ਹਿੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਲਾਅ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਅ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਬੰਦਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। देखो, मैं लाइक पहली लाइन में ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि साहब मैंने एकेडमिकली थिएटर नहीं पढ़ा, मतलब एज सच अपने साथ को स्टैम्प नहीं लगाया कि मैं आई एम अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मे बी नहीं है, लेकिन मैं इसको अंडरमाइन भी नहीं करता। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और मैंने मतलब मैं उसको बिल्कुल उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मानता हूँ कि यू नीड टू हैव एकेडमिक एजुकेशन। वो जरा अलग बात है कि उसको कवर करने के लिए मैंने आफ्टर डूइंग LLB प्रोफेशनल और देन आफ्टर हैविंग मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, मैंने हुआ दरिया है खुद रहा बना लेगा। जो आपके अंदर वो जो एक ज्वाला होती है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ सीखने की, वो मुझे लगता है वो जो थ्रस्ट है वो हमेशा रहती है। और उसी थ्रस्ट ने मुझे पढ़ने का भी मौका दिया। ये जरूरी है कि मैं किसी मतलब फॉर्मल थिएटर की एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूशन में ना लेकर के, वो एक कॉम्प्लेक्स ने मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा भी पढ़ने का, और अब भी पढ़ रहा हूँ, अब भी सीख रहा हूँ। अभी मैं अपने आप को एज ए थिएटर स्टूडेंट ही मानता हूँ और जब मुझे मौका मिलता है मैं सीखने की हमेशा कोशिश करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ। मतलब अपना रूट्स से लेकर के, जैसे हमारा जितना इंडियन थिएटर का हिस्ट्री है, राइट फ्रॉम क्लासिकल नाट्य शास्त्र की तहरीक से लेकर के, भास से लेकर के, मैंने संस्कृत के सभी नाटककारों को पढ़ा, उनके नाटकों को पढ़ा। ये सब इसी थ्रस्ट को लेकर के कि मैं, क्योंकि देखिए पढ़े बिना कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, मतलब ये कहेंगे कि नहीं मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मेरे पास एक जादू है, मैं रात को सोता हूँ और अचानक मेरे को सपना आता है और सुबह मैं कुछ एक्टर्स को लेकर के काम करने लगता हूँ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
हाँ, पॉसिबल नहीं, ये तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट सी हाँ, चीजें हैं। बिल्कुल सोचा भी नहीं आपको जा पढ़ना सकता। है, और हाँ। पढ़ने का, मैं पढ़ने को लेकर के आपने बात की, तो मैं, चूंकि मैं विदेशों में हूँ, विदेश में रहता हूँ, विदेश मंत्रालय में काम करता हूँ, और हुँ, बहुत सारे बड़े कैनवस पे हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो मैं कई लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पढ़ाई सिर्फ वंस होती है। ये हुँ, हमारे देश में इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वंस डॉक्टर इज अ डॉक्टर फॉर लाइफ, वंस टीचर इज अ हुँ, टीचर फॉर लाइफ, वंस हुँ, maybe XYZ engineer is once engineer is an engineer for life, but that never happens in US, that never happens in any part of the developed world। जहाँ जहाँ दुनिया ने तरक्की की है, वहाँ ये सब चीजें नहीं है साहब। हुँ, आप एक बार डॉक्टर बने हैं और आपको 1 साल का लाइसेंस मिलता है, और नेक्स्ट आपको जाकर के फिर से अपने आप को रिफ्रेश करना है। नए नए जो आपके फील्ड में नई जो उपलब्धियां हो रही हैं, नए जो अप टू डेट रिसर्चेज होना आए है। हैं, हाँ जी। जब हुँ, जब तक आप उनको हुँ, अपने आप में ग्रैस्प करके नहीं चल रहे, तब तक हुँ, आप, यू आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू योर लाइक प्रैक्टिस। हुँ, और सेम, I personally feel that we need to have the similar kind of practice in theater as well। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने लोग थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो थिएटर कर रहे हैं, थिएटर करना चाहते हैं, दे नीड टू अपडेट एवरी डे। हुँ, हर दिन क्या डेवलप हो रहा है, क्या दुनिया में क्या आया। अल्टीमेटली हम वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को रिफ्लेक्ट अपॉन करना है। अगर हम लोग सोसाइटी को देखना, समझना, दुनिया के रुख को समझना जब तक समझेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि हम लोग एक जस्टिफाई नहीं करेंगे जो अपना हुँ, अपना काम कर रहे हैं। थिएटर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो रिफ्लेक्शन तो तभी बन पाएगा जब हमारा सोसाइटी को समझने का पूरा हमारी पकड़ होगी, जब हम उसको देख पाएंगे, हम उसको समझ हुँ, पाएंगे। ये बहुत सारी जरूरी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि थिएटर, एक और मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि आयरन है इंस्टीट्यूशन, बहुत मतलब अभी उसका नाम काफी है, नटरंग नाम से जम्मू में मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो अक्सर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगती रहती है उस इंस्टीट्यूशन के बाहर। इट्स मोर लाइक ए फुल टाइम सेटअप है। हुँ, जैसे दफ्तर दूसरों के मतलब ऑफिसेज और भी खुलते हैं, वैसे वो ऑफिस खुलता है, उसका अपना अच्छा। परमानेंट रेपर्टायर है, सेटअप है, अपनी लाइब्रेरी है, ऑफिस है, ऑफिस की हुँ, पूरे कर्मी हैं, मतलब रेगुलर चलता है। अभी कोविड के दिनों में अभी कुछ दिनों से बंद है, वरना हुँ। लगातार, मतलब इट्स मोर लाइक एनी एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मतलब आप सरकार में भी देखते हैं, या कुछ और चीजें हैं जो बिल्कुल रेगुलर काम होती है। सर इनफैक्ट आपको हमारा तो 24/7 काम काम होता है। करना कुछ कई बार प्रोडक्शंस नहीं बने होते हैं, जब उसको कुछ पीछे रह गया होता है, तो रात रात पर स्टूडियोज में लोग बैठ के काम करना चाहते हैं। जो मैं सर बात करना चाहता था, उसे उससे हाँ, पहले रह जाए, मैं लेट मी हाँ, कंप्लीट दैट। दैट इज लाइक मेरे पास लोग आते हैं, हुँ, मतलब पेरेंट्स आते हैं बच्चा अपना लेके, देखिए साहब, मैं बहुत सारे मंचों पे कह चुका हूँ, देखिए हुँ, हमारा बच्चा ना पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, इसकी कोई मतलब रुझान नहीं है पढ़ने का। हुँ, तो हमने सोचा यार ये कुछ नहीं कर पाता, कम से कम कुछ ड्रामा श्रामा ही कर लेगा। तो चलिए हम आपके पास इसको एक्टर बनाने आए हैं, एक्टर बना लो, बैक स्टेज वर्कर बना लो, कुछ डायरेक्शन वगैरह सिखा लो, कुछ भी हुँ, करा लो। तो मैं पहली बात उनको कहता हूँ कि आर्ट वो लोग करते हैं जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। हुँ, आर्ट बिल्कुल, वही लोग निभा सकते हैं जो हुँ, दुनिया के हाईली एक्सपोज्ड पीपल है। हुँ, मैं तो कहता हूँ, और मैंने अब इतने सालों में काम करते करते लोगों में ये पब्लिक में एस्टैब्लिश भी करके दिखाया है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिविल सर्विसेज क्रैक कर रहे हैं, हुँ, ऑल इंडिया आईएएस कर रहे हैं, आईपीएस आईएफएस में आ रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज में कहीं भी आएंगे तो ऊपर नीचे कुछ कर रहे हैं। और स्टेट सर्विसेज में तो एंडलेस नंबर ऑफ एक्टर्स, यंग एक्टर्स जो वो गए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये क्यों हुआ, हुँ, इसलिए हुआ कि थिएटर आपको इतना रिस्पॉन्सिबल बना देता है, हुँ, थिएटर आपको इतना एक्सपोज कर देता है, थिएटर आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल को इतना ऊपर ले जाता है कि यू कैन अचीव एनीथिंग। हुँ, ये ड्रॉप आउट्स के लिए नहीं है। थिएटर वही लोग कर सकते हैं जिनका एक बहुत बड़ा, मतलब एक इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, और जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने वाले लोग हैं, वही थिएटर कर हुँ, सकते हैं, वही बिल्कुल, थिएटर में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लीज हाँ। प्लीज गो सर अहेड विद योर क्वेश्चन। हाँ, सर मेरा सवाल था कि जो आपका नटरंग ग्रुप है, आप बोल रहे हैं उसको वैसे आपने ऑफ़िस और ऑडिटोरियम के रूप में रखा हुआ है, तो आपके ग्रुप में कितने आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं? इतनी शि देखिए कितने पुरा देखिए, वी एस्टैब्लिश्ड नटरंग वे बैक इन 1983।
और हम 80 लोगों ने एस्टेब्लिश करने का भी कुछ और तरीका था कि कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चाएं चलती रहती हैं, मीटिंगें नहीं। मैंने ग्रुप की फाउंडेशन डे को हम उस दिन मानते हैं जिस दिन हमने पहला प्रोडक्शन किया था। 15 मई 1983 में हमने 2 नाटक करके इस ग्रुप का अनाउंसमेंट किया था। तो तभी से आज तक हमने अभी 37 इयर्स पूरे किए हैं, 38th ईयर में इस समय काम कर रहे हैं। तो बीच-बीच में जब देखिए देखिए हमारे यहाँ ब्रॉडवे तो नहीं बनेगा हमारे देश में, हमारे यहाँ रॉयल शेक्सपियर कंपनी नहीं बन पाएगी। हाँ, जो समस्याएँ जो जिस तरह की चुनौतियाँ हैं वो सबकी बराबर हैं और पूरे देश में बराबर है, उत्तरी भारत में विशेष रूप से। उत्तरी भारत में जैसे चंडीगढ़ में फिर थोड़ी सुविधा जाएँगे देश के मतलब बिल्कुल हम वी आर अ डिस्टेंट स्टेट स्टेट क्या अब तो यूटी हो गए हम लोग मतलब वो रीजन है जो बिल्कुल आखिरी मतलब है तो वहां तक और थिएटर का इम्पैक्ट जो नीचे आ रहा है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसी स्टेट में काम करना जहाँ पे हम लोग जहाँ स्टेट में ऐसे खित्ते में काम करना जहाँ प्रायोरिटी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लोगों की कुछ और है सिक्योरिटी एक प्रायोरिटी है बहुत बड़ी और मतलब रोटी कपड़ा और डिफरेंट मकान स्टेट है। के से बाहर मेरे लोगों की सोच अभी नहीं आई वो तो उनके लिए सब रोटी कपड़ा और मकान के बाहर कुछ नजर नहीं आता ऐसे जगह पे कुछ कर पाना ये जुनून ये बहुत ये पागलपन बहुत शुरू से ही था और ग्रुप में उन्हीं लोगों को लाया गया उन्हीं लोगों को मोटिवेट किया गया उन लोगों को काउंसल करके तैयार किया गया मतलब मैं मेरा ये कोशिश रहा है कि जिस व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ते हैं उसको पहले पूरी तरह से अपना जो आपका विजन है थिएटर का जो उसका कलेक्टिव विजन है उसका हिस्सा बनाना उसको बताना कि देखिए हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं अगर आप इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी भी एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है और आप भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो काइंडली कम ज्वाइन एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन तो इस तरह से फिर हमने और चीजें एक्सप्लोर की और करते करते क्या हुआ कि कुछ लगा कि देखिए ना जब व्यक्ति काम करने लगता है यार ये खित्ता भी छूट रहा है ये खित्ता भी छूट रहा है तो हमने क्या किया थोड़ा थोड़ा डिविजन्स कर दिए हैं लेटर आकर के पहले तो शुरुआत फिर थिएटर तक महदूद थी फिर थिएटर के अलावा फिर हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू कर दिया फिर हमने म्यूजिक डांस सर कैसी डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन जाहिर है मतलब अपनी जो ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग मोड्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दी उसमें प्रैक्टिस शुरू कर दी फिर उसके साथ हमने एक म्यूजिक और डांस का अलग से नटरंग का म्यूजिक एंड डांस रेपर्टरी नटरंग में अलग है चिल्ड्रन थिएटर ग्रुप नटरंग में अलग है और जो मेन हमारा जो रेपर्टायर है जो ग्रुप है जो एक्सपेरिमेंटल काम करता है वो अलग है मतलब है तो सब लोग वही हैं लेकिन अलग अलग डिवीजन है कुछ लोग परमानेंट काम करते हैं हमारे पास परमानेंट लोगों का भी नंबर जो है वो ठीक ठाक है अराउंड 45 प्लस परमानेंट पीपल आर वर्किंग इन नटरंग ऐसे अगर कुल मिला के देखा जाए तो 150 का काफिला है जो म्यूजिक डांस वाले लोगों को लेकर के और बच्चों का ग्रुप लेकर के एंड वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी वेल क्वालिफाइड इन थिएटर एंड ऑल सर आप स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ के आ गए हैं मेरे स्टूडेंट्स जो नटरंग से निकले हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके में मतलब जितने 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं यूके के वहाँ के पास आउट्स हैं नेशनल ऑफ ड्रामा में तो लार्जेस्ट नंबर मतलब इस समय अगर मान लो अगर 30 लोगों का आप नाम लेंगे जम्मू कश्मीर से जिन्होंने एनएसडी किया तो उसमें हो सकता है 29 लोग जो हैं वो नटरंग के हो सकते हैं क्योंकि ये इस तरह से हमने ये कोशिश की है आपके यहाँ इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से वहाँ से अपना पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी वहाँ से भी स्टूडेंट्स ने पास करके दे हैव जॉइंड बैक नटरंग तो मतलब पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी के बाद ऊपर मतलब पंजाब इंटायर पंजाब में और हिमाचल में कहीं पे भी इस तरह का मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेनिंग का या इस तरह का कुछ है नहीं तो नटरंग इसको भी फिल इन करने की कोशिश करता है मतलब वी आर ट्राइंग टू फिल इन दैट गैप आल्सो कि हमारी रेगुलर हमारा एक जो वर्कशॉप सीरीज है उसमें तो हर मंथ एक नया वर्कशॉप होता काम है चलता रहता है चलता रहता है बच्चों सर जी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं अनिल टिक्कू जी आपके सीनियर आर्टिस्ट है आपके ग्रुप के कुमार पवन इज द ओनली संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी फॉर एक्टिंग इन थिएटर सर मैंने इनका काम देखा है बहुत अच्छे एक्टर हैं कुमार पवनदीप जी अरविंदर कौर बलकार सिद्धू अनीता सबदीश दिलजीत डाली सबको नमस्कार चंद्रावीप जी लिख रहे हैं पढ़े बिना गल नहीं बढ़नी असल गल वो आपकी बात पे कह रहे हैं इंद्रजीत सिंह पाटिया जी
संदीप शर्मा जी, चंद्रवीर जी कह रहे ने समझो परे स्वांग समझ लेना ही वड्डी समझ दा प्रमाण है। बहुत अच्छी ओके गल। ओके। पूजा और महाजन जी, ओके, फाइन फाइन। और बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े होंगे जिन्होंने मेरा काम जरूर देखा होगा। बिल्कुल सर, मैं बात हो रही है चंडीगढ़ में, आपके काम की चंडीगढ़ में। हाँ, ये बोल रहे हैं। चंडीगढ़ चंडीगढ़ में लोगों ने देखा हुआ है। हाँ जी, चंडीगढ़ में, एसपी पटियाला में आई बीन विजिटिंग क्वाइट ऑफन। आई डोंट नो आप लोग वहां नहीं, पटियाला में भी, अमृतसर में सर, भी, और पटियाला में पंजाब। आप ज्यादा आया करो। पंजाब इज सेकंड होम। पंजाब में। सर, एसपी अरोड़ा जी लिख रहे हैं, वेलकम पद्म श्री बलवंत ठाकुर जी हु इनेक्ट हम्म, चिल्ड्रन थिएटर इन जम्मू एंड कश्मीर प्राउड। आई हैव वॉच्ड बाबा जत्तू एंड मेरा हिस्सा की मे- मेरे हिस्से की मेरे धूप, हिस्से की सॉरी, धूप कहाँ मेरे है? हिस्से की धूप। हाँ जी। हाँ। इंद्रजीत पाटिया जी, समाज की नब्ज रंगकर्मी अच्छी तरह पकड़ सकते हैं दूसरों की बनिस्बत। हाँ जी सर, मैं बात कर रही थी, आपका नाटक है महाभोज, जी जी जी। उसपे जो आपकी स्टेज डिजाइनिंग है, सेट प्रॉपर्टी है, वो एक आपके पास डांगे ही है मेरे के 7-8, है ना? उसके बारे में बहुत चर्चित प्ले है आपका, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया प्ले है मनु भंडारी जी का। तो उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे आप उसकी डिजाइनिंग की, आपने क्या सोचा उसके बारे में? देखिए, उसमें बहुत लंबी चौड़ी सोच है, क्योंकि इस तरह की चीजें बनाने में जब आपको बताऊंगा तो आपने कहना अच्छा ऐसे भी लोग काम करते हैं क्या। आप उस पूरे नाटक को बनाने में कितना समय लगा और कितना समय रोज कम देते। देखिए, समय तो लोग कहते हैं कि कोई आदमी आपको आता है, अरे साहब सुनिए, मैंने जो है पिछले 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ। तो मैं कई बार ऐसे ही थोड़ा मजाक के तौर पे भी, लेकिन सच्चाई भी है, जानना भी चाहिए कि भाई 20 साल में आपने हफ्ते में या दिन में कितना काम करते थे। नहीं नहीं, वो साल में कभी कभी हमें मन करता था तो कभी एक नाटक करते थे, लेकिन मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे 20 साल को मैं गिनता नहीं हूँ। हाँ, देखिए, वो उस नाटक की मेहनत का आप देखिए क्या है। मैं बहुत बहुत लंबा बैकग्राउंड है। पहली चीज तो ये है कि मैंने हमेशा, और एक समय में, हमेशा तो नहीं, शुरू शुरू में तो मेन स्ट्रीम थिएटर था, जैसे देश में हो रहा है उससे प्रभावित होकर जैसे आप काम करता है, आदमी कहता है यार मुझे तो अभी वाहवाही भी लूटनी है। वाहवाही लूटने का मतलब नहीं, मतलब थोड़ा सा रिकॉग्निशन भी बढ़नी है, लेट देयर बी ऑडियंस। दर्शक भी नहीं थे तो पॉपुलर प्लेस का करना बहुत जरूरी था, और उस तरह के नाटक जो थोड़ा मतलब ऑडियंस भी जुटा पाए और बड़े आसानी से हो पाए, और बिल्कुल स्ट्रक्चर थे जो सारा कुछ कन्वेंशनल देखना थिएटर हुआ। पड़ता, हाँ, हाँ, जो सब कुछ देखना कन्वेंशनल, पड़ता। जिस तरह का एक कन्वेंशनल एक मेन स्ट्रीम थिएटर इंडिया में हो रहा था, उसी 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 लय में हम भी चल रहे थे। लेकिन एक समय में लगा कि चूंकि अब बलवंत ठाकुर हैज कम एज अ फुल टाइम थिएटर मतलब प्रैक्टिशनर, तो मेरी अपनी जब तक पहचान नहीं होगी, मेरा बलवंत ठाकुर का थिएटर कौन सा है, मेरी भाषा का थिएटर कौन सा है, मेरे रीजन का थिएटर कौन सा है, नटरंग का थिएटर कौन सा, जम्मू का थिएटर कौन सा है। अगर मैं भी वही नाटक करूं जो अभी कुछ दिन पहले मुंबई में हो रहा था, या कोलकाता में हो रहा था, या दिल्ली में हो रहा था, और उसका स्ट्रक्चर, स्टाइल और सब कुछ उसी तरह का है, तो मैं एक ही चीज को उठा करके एक पौधे को दूसरी जगह लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई एज सच, अदर देन पॉपुलराइजिंग थिएटर, मेरा कोई बोलो एक अपनी एक शनाख्त बनाने का, अपनी पहचान बनाने का कुछ नहीं था। तो महाभारत से बहुत पहले से ही मैंने आई स्टार्टेड डूइंग ओरिजिनल वर्क्स। ओरिजिनल वर्क्स का प्लीज जो थिएटर करने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि ओरिजिनल वर्क और दूसरे वर्क में क्या होता है। तो मेरा हमेशा यह था कि मैं कम काम करूं, लेकिन मेरा काम ओरिजिनल होना चाहिए। तो मैं अपनी तरह से अपनी एक नाट्य भाषा की खोज में लग पड़ा। अपनी तरह से मैं अपना ऐसा नाटक जो मेरी भाषा में हो, जो मेरे प्रदेश में मेरी मिट्टी से उपजा हो, तो ये सारी चीजों को करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा स्टडी किया। स्टडी करने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई कम फ्रॉम अ विलेज, मैं गांव का व्यक्ति हूँ, और पूरा बचपन जो है गांव के उस माहौल में बीता है जहाँ पे संगीत, नृत्य, सारी चीजें, उससे सारी चीजों का हिस्सा था मैं। ये नहीं कि मैं दूर से देखता था। मैं आई वाज नॉट ए साइलेंट स्पेक्टेटर देयर, आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो उस माहौल में अर्ली मेरी एजुकेशन जो अप टू 5th 6th तक की हुई है, उसमें मैं बहुत अपने आप को मैंने इनरिच किया हुआ है, बहुत इम्बाइब किया है लोकल कल्चर को, लोकल लैंग्वेज को, लोकल रिचुअल्स को, परफॉर्मेंसेस जितने भी होते थे उनके हर चीज में, आई डोंट नो क्या था, इट वाज अ गॉड्स गिफ्ट। मुझे हर चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा मैं लार्जर उसमें पार्टिसिपेशन करता था। कई बार जो रात रात भर रिचुअल चलते थे, वो रिचुअल में सब मेरे को डांट भी पिटती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी पीछे नहीं हटा और मैं सब देखता था। ये सारी चीजें मैंने एज ए चाइल्ड इम्बाइब करी थी। लेटर जब मैं ओरिजिनल काम करने लगा, तो ओरिजिनल करते करते मैंने बाबा जित्तो किया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब भी देखिए, मैं भी बता दूं आपको कि बाबा जित्तो इज द लॉन्गेस्ट लिविंग
कंटेम्परेरी इंडियन प्ले एज ऑफ नाउ, वो तो हमारे सिग्नेचर परफॉर्मेंसेस हैं जो अभी कभी बंद नहीं। मैं तो क्या पूरे नटरंग में हमने फैसला लिया है कि कुछ नाटक जो सिग्नेचर परफॉर्मेंसेस हैं जिससे हमारी पहचान हुई है, जब तक इंस्टीट्यूशन रहेगा तब तक वो नाटक बिल्कुल जिंदा रहेंगे और बिल्कुल चलते रहेंगे। अभी मतलब उसको भी कितने साल हो गए, 1986 का प्रोडक्शन है और आज आज तक 2020 चल है। रहा है। आज तक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है हम्म, और बड़ा बड़ा क्राउड पुलर है, बहुत लार्जर बहुत ऑडियंस के पॉपुलर साथ। प्ले हैं सर आपके, हाँ बहुत हाँ। पॉपुलर प्ले हैं, बहुत ज्यादा। अब महाभोज की जब जिक्र आया तो हम्म एक समय में मुझे, मेरे दिमाग में ये था कि मैंने महाभोज देखा था, मैंने नेशनल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी का नाटक देखा था और उसको देख करके मेरी ये इच्छा हुई कि ऐसा नाटक अगर दूसरे खित्तों में जाए तो नाटक और थिएटर बहुत पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि एक तो बहुत ही रेलेवेंट थीम था, इतना बड़ा नावल है जो हम्म बहुत ही बड़ा कंटेम्परेरी एक पॉलिटिकल कमेंट है। और लेकिन जब देखा उनका तामझाम, 100 कुछ लोग लेकर के रेपर्टरी में वो नाटक किया गया था, 8 उसके लोकेल थे। जब मैंने हम्म किसी को पूछा कि साहब इसको तो इंदौर भी तो कर सकते थे, कमानी में या किसी हम्म और में, तो कहे नहीं 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 हम्म, साहब ये तो हो नहीं सकता था। रीजन क्योंकि इसके तो 8 लोकेल्स हैं, अलग अलग ओह, सेट्स लगे हैं हाँ और फिर समझ वो गई। एक जगह से मेघदूत में होता था, एक जगह से हम्म दूसरी दूसरी तीसरा। मेरा इच्छा हुई कि इस तरह के थीम्स पे काम होना चाहिए और क्यों ना कुछ हम्म ऐसा किया जाए कि इस देश की इकोनॉमिक्स को भी देखा जाए। हर जगह आप लाखों रुपया, उस समय कहते थे कि साहब 10 लाख से पता नहीं कितना ज्यादा पैसा उसके ऊपर लगा था। इतना हम्म पैसा तो कोई जुटा नहीं पाएगा हमारे देश में। तो हम्म, फिर थिएटर कैसे होगा? ये सरकार का भी जो अप्रोच है वो वहीं तक रह जाएगा और दिल्ली के कुछ दर्शक, चंद दर्शक आएंगे वही लेकिन देखेंगे, तो चले और जाएंगे। इतने बड़े देश ठीक। में नाटक हम्म कैसे पहुंचेगा? हम्म। तो मेरा इस कहानी को लेकर के, इस उपन्यास को लेकर के बहुत था। मैंने पंडू भंडारी जी को भी कांटेक्ट किया, उनसे मैंने परमिशन लिया कि मैं इसको पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंटली करने की कोशिश हम्म करूंगा एक कोरस थिएटर में। और फिर कोरस भी वो कोरस जिसके रूट्स टोटली मेरे फोक में हाँ, हो, मैं ट्रेडिशन में यही हो। बात करने वाली थी आपसे कि हाँ फोक ना, हम फोक पे ट्रेडिशंस जो आएंगे, आपके। हाँ फोक पे आऊंगा, मैं आऊंगा हाँ आऊंगा जी हाँ आई जी। कम, बिकॉज आज का जो थीम है उस पे हम हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा, जो मेरे को, मुझे थोड़ा सा ज्ञान है। आई एम नॉट ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट ऑन फोक, बट नहीं नहीं जो मैंने सर, फोक आपके से पास इम्बाइब, जो बहुत बहुत कुछ सारे है आपके पास। नाटक जो मैंने किए हैं, तो फिर मैंने देखा कि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग नरेटिव ट्रेडिशंस हैं, जो कथावाचन की ट्रेडिशन है, जो जिसमें मतलब, और हमारे यहाँ, आप सब, मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा यहाँ पे कि इतिहास में जब प्रिंट माध्यम नहीं था तो जितना हमारा ट्रेडिशनल विजडम था वो जनरेशन टू जनरेशन तो कथावाचकों जी की जी। मेहनत से, उनकी कोशिश से हमारा विजडम बचा आज तक। तो हम्म हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, हालांकि पंजाब में भी है, लेकिन जम्मू इज लाइक मोर इफेक्टिव दैट वे। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कारका है, बारा है, सोइयां है, छिंजा है, बहुत मतलब हम्म वेरिएड है। जो सोइंगी वो है क्या है ना, भाखा है, तो भाखा का जो नरेटिव है वो जो कोरस गाता है पूरा, हम्म 20 लोग एक साथ गाएंगे। गीतड़ू भी हम्म कोरस है, सारी सारी नरेटिव ट्रेडिशंस है और हम्म एंडलेस नंबर ऑफ ट्रेडिशंस हैं जो नरेटिव ट्रेडिशंस है वहाँ पे। तो उन ट्रेडिशंस को सोच करके मैंने कहा चलिए इनको इम्बाइब करते हैं, वही म्यूजिक, वही गाना। फिर हम्म हमने प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ मिल करके, क्योंकि उन्होंने मेरा नाटक बाबा जित्तो लिखा था तो इनमें भी उनको मैंने इन्वॉल्व किया, तो हमने भी स्टार्टेड अडेप्टिंग। हमने एक क्या करते हैं, जब आप नाटक को, एक रियलिस्टिक प्ले है, हम्म बिल्कुल आज की कहानी है, हम्म मुख्यमंत्री है, पॉलिटिक्स है, पुलिस है, मतलब जो हम्म पावर सत्ता के जो जितने अलग 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 इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब उस नाटक में है। वहाँ शोषक, शोषण करने वाला भी है, शोषक भी है, और हम्म उस तरह का समाज है। तो सारा और अलग अलग, और कोई बार स्ट्रक्चर, मैंने कुछ डिजाइन मेरे दिमाग में था, मैंने उससे डिस्कस किया। वो कहते हम्म बलवंत ये कैसे होगा, देखो ना इतना बड़ा कैनवस है, इतना बड़ा उपन्यास है, हम्म तो कैसे करेंगे? खैर वी स्टार्टेड वर्किंग, हमने कुछ स्ट्रक्चरिंग शुरू कर दी टीम के साथ हम्म, बैठ करके। एक हमने वी स्टार्टेड लाइक इम्प्रोवाइजिंग सीन्स और कुछ अच्छा। एक स्ट्रक्चर करके उस पर काम करना शुरू किया। मैं ये पूरी, अभी लंबी चर्चा हो जाएगी, बातें और भी बहुत करनी है। इट हम्म टुक अस 9 months, ओके। 9 महीने हमने इस पे काम किया विद टीम ऑफ 20 एक्टर्स। हम्म और पहले, सबसे पहले, अब तो उसको और भी कम कर दिया मैंने, अब तो मैं हम्म 14 एक्टरों के को लेकर के नाटक करता हूँ। पहले मैं हम्म, पहली बार 20 एक्टर और 8 डंडे। ये अच्छा। बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे देश में। हाँ, हाँ, बहुत प्रसिद्ध हुआ आपका, बिल्कुल। ना हमारे यहाँ किसी ने डोगरी में लिखा था, 20 बंदे दे 8 डंडे। हाँ, ये दुनिया दुनिया भगा सकते हैं, दे कैन बी द वॉरियर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। ये तो हम्म, दुनिया कहीं पे भी मतलब इस तरह बड़ा बड़ा हाँ अप्रिसिएशन बाद में समझ मिला है। गई मैं लेकिन आपकी बात, बहुत अच्छा मतलब लेकिन उसका था। लेकिन लेकिन
काम क्या होता था, 10 घंटे दिन में रिहर्सल होता था। अच्छा। 10 आवर सुबह 3 से लेके 8 बजे तक, 5 हम्म। घंटे। और सुबह हम्म। 3 मैं पूरे जितने सुनने वाले हैं सब उनको बता दूं कि सुबह 3 किसी ने बजते देखे हैं क्या? और हाँ, मैं वही सर्दियों के सोच 3 रही थी कि सुबह 3 या शाम 3, कहीं आप गलती से नहीं बोल के। नहीं, सुबह के 3 से 8 बजे हाँ। तक एक समय होता था। फिर देन हम्म। शाम को अगेन 3 बजे मिलते थे उसके 8 बजे तक। 5 घंटे अच्छा, सुबह, 5 घंटे शाम फिर को। शाम को। 10 हाँ। घंटे काम होता था। एक-एक सीन को बड़ी बारीकी पे एक-एक सीन बनाने के लिए, उस नाटक का एक-एक सीन बनाने के लिए 20-20 बार नया बनाया गया। कि नहीं, नहीं, हम्म। ये फिट नहीं आ रहा। एक स्टाइलिस्टिक यूनिटी में जिस स्टाइलिस्टिक यूनिटी में मैंने इसको स्ट्रक्चर किया था, आई वांटेड टू कंप्लीट द एंटायर परफॉर्मेंस, उसी ग्राफ में उसको चलाना चाह रहा था। हम्म। और बड़ी मेहनत के बाद ये उन दिनों ज़ोनल और नेशनल फेस्टिवल्स होते थे। एक परंपरा थी मैं आज भी एक जगह उनको लोग बोल रहे थे कि ये जो क्या है हमारा जो जो उस समय का की जो मूवमेंट थी हम्म। बैक टू रूट्स की, वो बिल्कुल लुप्त हो गई। और संजय उपाध्याय ही बोल रहे थे आज। उन्होंने कहा हम्म। कि ये फिर से रिवाइव होनी चाहिए थी क्योंकि बहुत सबसे बेहतर देश का काम जो हुआ है, वो हम्म। उस समय में हुआ है जब सब लोग पूरे देश के जितने भी मतलब प्रोमिनेंट थिएटर डायरेक्टर्स थे, सबने इस तरह का काम किया। बिल्कुल लीक से हट करके आउट ऑफ बॉक्स काम किया, रूट्स में जाकर के वहाँ से चीज़ें इम्बाइब करके, उनको एसिमिलेट करके चीज़ें प्रोड्यूस करी। तो ये नाटक जब पहली बार ज़ोनल फेस्टिवल इलाहाबाद में हुआ था, हमने जम्मू में उसका शो भी नहीं किया था। तो अच्छा, वहाँ पहला शो ही ज़ोन के इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ। ज़ोन में जितने नाटक थे पूरे हर खित्ते से एक-एक नाटक था। तो दिस प्ले ज़ोन से एक नाटक सेलेक्ट होता था सर, मतलब सर एक बात बेस्ट। मेरे एक एक हुँ, सवाल है मेरे मन में। जब हुँ, आपने एनएसडी की प्रोडक्शन देखी थी, बहुत पैसा लगा हुआ था उसमें, है ना? जितनी हुँ, लोकेशंस थी, जितने सेट थे, हुँ, और हुँ, आपके जब आपने डिजाइन किया, आपने सिर्फ 8 स्टिक्स के साथ किया, राइट? हुँ। तो आपका तो उसके कंपैरेटिवली आपने बहुत थोड़े पैसे में नहीं, नहीं, बहुत हमारा बड़ी 8 प्रोडक्शन। 8 8 डंडे भी मैंने अपने गाँव से लाए थे, उसपे भी मैंने पैसे नहीं खर्चे। अच्छा। अच्छा। आप ये पूछ रहे हैं कि 8 डंडे कितने के थे? वो हाँ। 8 डंडे मेरे गाँव से भी लाए थे हमने। 8 क्या नहीं, मेरे बात उल्टे है सर, ज़्यादा ही ले आए थे। मैंने क्रिएटिविटी कहा के लिए टूट कोई गया। पैसे की जरूरत नहीं है। देखिए वो उस नाटक ने बहुत चर्चा आज भी आप जब कहीं जाएँगी और भारतीय पहचान है सर आपकी। आधुनिक भारतीय रंगमंच के ऊपर जितनी भी किताबें आई हैं, हम्म। चाहे वो नेमीचंद्र जैन जी की किताब है या जयदेव चंद्र तनेजा जी की किताबें हैं भारतीय रंगमंच के ऊपर और खास तौर पे समकालीन भारतीय रंगमंच पे, तो उस नाटक के ऊपर जिक्र बाकायदा होगा। चैप्टर है, ज़िक्र है। सर, देयर इज़ एक अ आपका देयर नाटक इज़ घुमाई भी है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम्म। मैगज़ीन जो न्यूयॉर्क से छपती है, जिसका टीडीआर नाम है, द ड्रामा रिव्यू। बहुत वहाँ पुराना तक मैगजीन है सर ये। हाँ। तो ड्रामा रिव्यू तक चर्चाएँ हो चुकी हैं मेरे नाटकों की। इस तरह की सर चीज़ें। सर, हुँ। आपका एक नाटक घुमाई भी है, वो भी बहुत चर्चित। हुँ, वैसे तो आपके सभी नाटक बहुत अच्छे हैं, किस पे हुँ, बात करें, बहुत ज्यादा आपका काम है। उसके हुँ। बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ में बताओगे क्या? क्या एक्सपेरिमेंट, क्योंकि दे दे हमारी देखिए जिज्ञासा। अ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीज़ें वो की जाएँ जो धरती से उपजी हों, हम्म। वैसा काम करें जो इससे अच्छा मौका कोई नहीं था मेरे लिए। हम्म। मैं हमेशा कुछ नया काम और कुछ डिफरेंट करने की मेरे अंदर रहती थी, तो ये घुमाई मैंने एक छोटी-सी कोई एक कहानी कितनी थी ये मतलब अगर बोलने लगूँ तो 1 मिनट की कहानी। अच्छा। मैं जब 10th में पढ़ता था तो मैं अपनी मदर के साथ हमारे जो मेरे नाना जी का घर है वहाँ उनके साथ मदर के साथ जाता था तो पहाड़ चढ़ना था मैंने वो पूरा पहाड़ माता वैष्णो हम्म। देवी की पहाड़ियां लोगों ने देखी होंगी उसके बिल्कुल बैक हिल्स में मेरे नाना जी का घर था। तो हम्म। अपने पहाड़ में मेरे को चलते चलते बड़ी प्यास लगी तो मैं रोने लगा बैठ गया एक जगह। तो मेरी माँ ने मेरे को खुश करने के लिए थोड़ा बोलते बोलते फिर ये इसका ध्यान थोड़ा हटे तो मेरे को हम्म। ना एक पानी को लेकर के उन्होंने कुछ फोक टेल सुना होगा कहीं तो वो हम्म। उन्होंने मेरे से शेयर किया। हम्म। वो कहानी का मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट था कि वो मेरे अंदर दिमाग में घूमती रही, कई सालों तक घूमती रही। और जब मैं थिएटर पूरी तरह से शुरू करता थिएटर जब भी मैं करता था कई बार मैं इस कहानी को मैं अगर उस पे अगर नाटक करूँ तो कैसे होगा? जिससे लोगों से मैंने डिस्कस करना तो उनको बताना सारा उसका जो स्ट्रक्चर है, जो कैनवास था प्ले का वो मैंने कहा पहाड़ है दुल्हन जा रही है, दुल्हन को ले जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ के ऊपर पहुँच जाते हैं।
पानी नहीं मिलता, दूर पहाड़ के नीचे पानी नजर आता है। फिर वो वहां से जो पानी लाने वाला है वो जाकर के लुटक लुटक के वहां पहुंचता है, फिर पानी में गिर जाता है, फिर उसके पास यूटेंशियल कोई नहीं है, पानी कैसे ले जाए। तो ये इस तरह की चीजें मेरे दिमाग में, और जिससे बात करता कहते हैं ये तो फिल्म का कैनवस है, हम्म। ये तो फिल्म भी, और वो भी हॉलीवुड वाली फिल्म है। मतलब हमारे यहाँ तो ये भी लोग बनाते बनाते भाग जाएं, तो आसानी से चीजें बनाने वाला कुछ नहीं है, तो कैसे बनेगा। तो आई केप्ट, मतलब लाइक क्या होता है कि जब आप अपने अंदर एक किसी चीज को खोजने में लग पड़ते हैं तो थिंग्स कीप कमिंग इन योर माइंड। और उससे हम्म। ज्यादा भी इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपकी जो टीम होती है, यू नीड अ वेरी कोऑपरेटिव टीम। इस तरह के काम करने के लिए टीम आम का जिस होना तरह का जरूरी है। आप थिएटर कर रहे हैं, हम सब लोग जो कर रहे हैं कि हम्म। एक्टर आया है, उसने जी मैं जी 2 घंटे के लिए आया हूँ अभी, वो आप अभी हम्म। बात ही कर रहे हो तो घड़ी पहले देख रहा होता है, वो वाला उन हम्म। ऐसे लोगों के साथ काम करके आप इस तरह की मजा आउट, नहीं आ सकता, काम नहीं मतलब कर सकते। हम्म। मैं ये नहीं कहता आउट ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स प्रोडक्शंस नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि वो आउट ऑफ वर्ल्ड बनी ना बाद में, वो नाटक जो है is the first Indian play which represented India in the Frankfurt International Theatre Festival, which went to the World Experimental Theatre Festival in Russia. लार्जली इंडिया के बाहर ट्रेवल किया उस प्ले को लेकर के, सर विद जब इन आप इंडिया। सर आप जब इंडिया से बाहर जाते हो प्ले लेके अपने, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता वहां पर? वहां भी काम की उतनी कदर होती है जितनी इंडिया में? दर्शक का इंडिया में, क्या? इंडिया में कदर होती है। नहीं सर, पर हम इंडिया को बुरा नहीं ना कहेंगे। नहीं नहीं, इंडिया को पूरा, मैं उसके लिए नहीं, जो है उस सच्चाई को क्यों नहीं आप लोग अंडरलाइन कर। हाँ, एक्सेप्ट कर रहे। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक हम्म। वही नाटक, एक रशिया में शहर है, उसका नाम है यूरोस्लाव। हम्म। तो यूरोस्लाव में हम लोग उसका पहला प्रदर्शन करने गए थे। अच्छा, पहले हम लोगों की आदतें डिफरेंट हैं। अभी नाटक अभी शुरू नहीं हुआ था, तो नाटक से ना नाटक शुरू होने के 15 मिनट पहले कम से कम हम लोग बैक स्टेज में, मेरे एक्टरों को आदत है ना, जैसे यार नाटक शुरू होने वाला है तो शोर मचता है ना हॉल में, हम्म। हाल की आवाज आती है बैक स्टेज में। कहते, हम्म। मेरे को कहते सर, मैं क्या हुआ, कहता कोई पता पता करो, बंदे आए भी है, कोई देखने वाले क्या, हाल खाली है। हाँ? मैंने और 2500 सीटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम था। अच्छा। तो मैंने कहा अभी देखते हैं, कोई बात नहीं यार, चलो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, कोई इंटरनेशनल परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपना दिमाग में तो वो रहता है उस तरह की अपनी जो लास्ट मिनट चीजें हैं, तो चेकलिस्ट देखो, ये करो वो करो, चल रहा था, चल रहा था। सबने, जब हम पूजा करते हैं तो मतलब परफॉर्मेंस से पहले ये हमारा नटरंग में बहुत शुरू से ही परंपरा रखी है। जैसे हम लोग ग्रुप इकट्ठा करके उसमें एक तो हम कंसंट्रेशन बनाते हैं, पूजा, थोड़ा सा मेडिटेशन होता है, और साथ में लास्ट मिनट जो एक दूसरे को कुछ चीजें कहनी होती हैं, वो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस भी चलती हैं, लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यूजुअली दी नहीं जाती है, लेकिन कोई एक चीज रह गई हो तो करते हैं। तो सब कहने लगे पहले आप देख के आओ जी, बंदा ही कोई नहीं है तो हम लोग क्या मजा आएगा करने का यहाँ। और जाहिर है हमने सोचा कि हम रशिया में कर रहे हैं, रशियंस को क्या, रशियन को अंग्रेजी नहीं आती हाँ सही बात है, क्या समझ आएगा उनको। थी। हम्म। तो मैं अगर के हल्का सा पर्दा साइड से निकाल के देखा, पैक टू कैपेसिटी, ओह। फुल हॉल है, और आपको आवाज नहीं आ रही है। मैंने जाके हम्म। बोला भाई बेवकूफ लोगों, ये पैक हाउस है सर, हाँ, पैक हमारे तो हाउस है, शोर मच जाता है ना। आवाजें क्यों नहीं आ रही, आवाजें क्यों नहीं आ हम्म। रही। चलिए ठीक है, ये तो रहा यहाँ तक। नाटक शुरू हुआ, हम्म। नाटक हुआ, चलता रहा, म्यूजिकल था। वो पूरा हमारा एंटायर जो जितनी रिपोजिटरी है संगीत की मेरे प्रदेश की, वो सारी मैंने डाली हुई है उसमें। तो नाटक म्यूजिकल था, डांस बेस, सब कुछ उस तरह का। और कहानी यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कर लो तो लगता है कि यहीं की कहानी उठा ली है मैंने। हम्म। तो जैसे नाटक खत्म हुआ, नाटक खत्म होने के बाद दर्शक खड़े हो गए और वो हम्म। तालियां बजा रहे हैं। तो हमने सुनी है ताली, 1 मिनट बजी, 2 मिनट बजी, चलो भाई हम्म। अब लोग अभी पैक करें, वापस जाएं, बैक स्टेज जाएं। हम्म। मेरे एक्टर्स वहां से लाइन में, मेरे पास वीडियो है इसका पूरा, अच्छा। उधर से जा रहे हैं, हम्म। जैसे ही हिलने लगते हैं उधर जाने, फिर तालियां बज रही हैं। क्या अब बात है। अब मतलब हाँ, क्या करें यार, क्या ये आनंद तालियां आ रहा होगा जा रहे सर। हैं, हम क्या करें। आनंद तो आ रहा है, हाँ। लेकिन हम लोग, देखिए आनंद तो उसको आएगा ना जिसने पहले आनंद लिया हो। वो तो सारे कंफ्यूज है, सब हाँ। कंफ्यूज हो गए भी, क्या करें, ये क्या हो करे रहा है, हाँ। ये क्या, ये किस हाँ। दुनिया में आ गए हम लोग। दे हाँ केप्ट सच में। kept clapping, standing, हम्म। clapping for 15 minutes continuously. ओ। ये आकर कैसे ऐसे ऐसे करें,
फिर छोड़े, फिर तालियां बजे, फिर ऐसे करें, 3 4 5 बार वो भी किया। फिर इधर देखें, मैं था नहीं, मैं तो कंट्रोल पैनल पे बैठा था, मेरी तरफ देखें, कोई मैं कहूँ भाई भागो कुछ करो, हाँ, डायरेक्टर अंदर की जाने कमांड। की। नहीं डायरेक्टर नहीं, वैसे भी चलो ठीक है, जाना चाह रहे हाँ, होंगे, फिर करें क्या, हमारे हाँ, लिए हाँ। कोई बड़ी अनोखी घटना थी वो। सर एक ये सवाल मैं आया बताना है। चाहता हूँ, हाँ जी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, बट वेयर आई वांट टू कंक्लूड माय पॉइंट, कि साहब इतनी कदर है, इतनी कदर है कि ये जो जगह है ना अपना रॉयल शेक्सपियर कंपनी स्टैटफोर्ड में, तो इतने खत्म होता है तो एक बहुत बड़ा ग्लेज स्क्रीन, इतना मोटा शीशा ऊपर से अच्छा। नीचे तक आ जाता है, लोग चीखते हैं, कपड़े फाड़ फाड़ के चूमते हैं उसको, उनसे सर वो बीच में खड़े होकर के वेव कर रहे होते हैं सब लोग, इतने पागल होते हैं उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। सही बात, सही इतना बात। क्रेज लोगों ने मतलब थिएटर के लिए बनवा लिया है हमारे यहाँ। मतलब ये नहीं है कि इतिहास में कदरें थी, वो कहानियां और कथाएं सुनाने के लिए बहुत हैं। वो फैक्ट ये है कि मतलब थिएटर बहुत सारे इलाकों में तो अभी क्रॉल भी नहीं कर पा रहा अभी तो। सही बात। मतलब अपने आप को लोग कई बार ये भी समाज में जाकर के, ये नहीं, जब मैंने अपने आप को डिक्लेयर किया था आई एम गोइंग टू बी अ फुल टाइम थिएटर प्रोफेशनल, तो आधे लोग तो शौक में चले गए थे कि एक आदमी जो जिसका एकेडमिक्स अच्छा है, घर से बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, और ये कौन सा पागलपन, और कौन से ये काम क्या में है, पड़ गया। हाँ, कौन से बिल्कुल काम ठीक में है। पड़ गया। हाँ, और वही चीज आप यूएस में जाकर के या डेवलप्ड नेशंस में किसी जगह जाकर के, अब कहीं आदमी, पहले तो लोग इतना सोशलाइज नहीं करते हैं, लेकिन कहीं आपका किसी जगह परिचय हो रहा हो तो आप अपने आप को बताओ ना कि मैं आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, वो अगली आदमी आपको पहले से ही ऐसे देखना शुरू कर देता है, जैसे जैसे वो बहुत बड़ी किसी बड़े बड़ी हाइट वाले आदमी, अपने आप से कोई 10 गुना ऊपर वाला ऊपर आदमी वाली उसको तरफ देख। देख। हाँ, तो यहाँ किसी को बताओगे ना आप क्या करते हैं, मैं थिएटर करता हूँ, हाँ वो तो ठीक है, पर करते ठीक है, क्या हो। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਰੰਗਮੰਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਫॉर ਮਾਈ ਬੈਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਚूंकि ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਲੈਂਗੁਏजेस ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 12 ਜਾਂ 15 ਨਾਟਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वन थिंग, और पंजाबी सिर्फ उत्थे तक महदूद नहीं है, कश्मीर दे विच भी पंजाबी है, कश्मीर च भी 2 4 जगह ऐसी जिस तरह बारामूला है, तो बारामूला चूंकि मैं जिसले देखदा सी ते बारामूला विच भी काफी लोकी जिहड़े ना टू दिस एक्सटेंड मैं तुहानू दसना कि उत्थे तक तुहानू पता है पंजाबी कम्युनिटी इन्नी ज्यादा वो है, मतलब कल्चर और लैंग्वेज नू लैके इन्नी ज्यादा सचेत रहिंदी है कि हाँ मैं किथे करगिल और लेह दे विच पत्थर साहब है ना, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਲ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੱਲਣ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਵਿਕਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਸੀ ਜਸਪਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਸਤੂ, SP ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਜੀ। ਸਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਿਲਡਰਨ ਥੀਏਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ
मतलब ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਥੀਏਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ देख ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਹੈ ਕੌਣ ਬਹੁਤ ਹੀ अच्छा ਵਧੀਆ जी ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ हाँ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ 83 ਚ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਟ ਟੁਕ ਮੀ 6 ਇਅਰਸ ਹੂੰ not 7 ਇਅਰਸ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਮੈਂ ਔਰ ਅੱਛਾ 1990 ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਨਾਟਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂੰ ਔਰ 90 ਚ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ पहला नाटक मैं कहता मेरे हिस्से की धूप कहाँ है वो मैं ये भी दसना चाहना कि ये नाटक मेरे हाले भी जिंदा है मतलब मेरे हिस्से की धूप कहाँ है हाले भी नटरंग विच खेलिया जाता है और ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ मतलब ਸਰ जम्मू ਮੈਂ तो ਪਟਿਆਲੇ 40 ਦੇਖਿਆ बच्चे ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ हाँ जम्मू तो 40 बच्चे लेके जाना ट्रेवलिंग ऑल वे जम्मू टू हैदराबाद जम्मू टू अगरतला जम्मू टू से मुंबई जम्मू टू कोलकाता ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ जम्मू ਰਨ ਹੈ टू ਸਰ मदुरई जम्मू टू ਉਹ त्रिवेंद्रम ਹੂੰ अरे कोई ऐसी जगह ਕਿਤੇ शहर नहीं ਕੋਨਾ जिथे ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल और कितना मुश्किल है बच्चों नाल ਹਾਂ काम करना इज नॉट ਬਹੁਤ जबलपुर ਮੁਸ਼ਕਿਲ एक ਹੈ ऐसा शहर है जिथे साडे प्ले रिपीटेडली बार बार ਹੂੰ होए हैं बार बार मैं किते ने और बच्चों का नाटक बड़े सारे लंबी कहानी है मैं कितना जल्दी उन्हें शार्ट च करांगा पहली चीज कि जो जिन्ने भी लोग बच्चों नाल काम कर रहे हैं लाइक व्हाट शुड आई टेल देम हम ना बेसिकली फैशन के तौर पे चिल्ड्रन थिएटर कर रहे हैं हम्म वी आर नॉट जस्टिफाइंग द काइंड ऑफ थिएटर विच वी नीड टू डू क्योंकि जो हम लोग नाटक करते हैं हम इम्पोज करते हैं अडल्ट्स के प्ले करते हैं उनके साथ ट्रेनिंग की जितनी मेथोडोलॉजीज हम लोग उनके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो वही मेथोडोलॉजी हम उनको स्टन्सवर्स्की पढ़ाते हैं हम उनको ग्रोटोवस्की पढ़ाते हैं हम वो छोड़ते हैं तो वे नाट्य शास्त्र पे आ जाते हैं आई अंडरस्टैंड फॉर ए रेफरेंस दे नीड टू नो बट एक बच्चों की मुझे लगता है कि सेंसिटिविटीज को समझना उनकी संवेदनशीलता को समझना उनकी विजन को समझना बहुत जरूरी है वी नीड नॉट टू इम्पोज अडल्ट थिएटर अपॉन चिल्ड्रन ये मैंने उनके साथ काम करते हुए महसूस किया और मैं ये हमेशा सोचता रहा हूँ और भी सोचता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर के बच्चों के लिए एक अलग नाट्य भेदा की खोज करनी चाहिए मैं नहीं कहता कि मैंने नाट्य भेदा बना ली लेकिन मैंने कंटेंट और फॉर्म में दोनों में बच्चों के ऐसे थीम मेरे जितने भी नाटक देखे हैं आप चाहे भाग बेटा भाग हो या आप हमारे हैं कौन मेरे से की धूप कहाँ है हम है ना हुआ रंग बदलती दुनिया ये जितने मेरे नाटक मैंने किए हैं वो सारे वो नाटक हैं जो बच्चे जो है द वर्ल्ड सीन थ्रू चिल्ड्रंस आई लाइक बच्चे बच्चों की नजर से देखी जाने वाली दुनिया वो कैसे चीजों को देखते हैं मैंने सारे नाटक ही मतलब डेवलप किए हैं बच्चों के साथ वर्कशॉप करते करते उनसे सुनते किसी से कहानियां दोस्ती गांठ लेनी फिर बच्चों ने अपनी बातें सुनानी मैं इतना फ्रेंडली हो जाता हूँ फिर करते 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 एक तो कंटेंट की बात थी कि उनकी बात करनी स्टाइल में मैं वो चीजें करता था जो जिन चीजों को जल्दी अपने आप को खेल खेल में करना सब कुछ जिसमें उनको सबसे ज्यादा मजा आए जब कौन सी चीज में ज्यादा मजा आता है कौन सी चीज कौन सा एक्ट करने में आपको और किस तरह से करने में आपको ज्यादा मजा आता है तो बच्चे अपनी अपनी तरह से चीजें डिवाइस करते तो उन्हीं सारी चीजों को सजेशंस को इकट्ठा करके वैसे ही मैंने ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी उनके लिए अलग से थोड़ी थोड़ी डेवलप की जो बिल्कुल इंटायरली कन्वेंशनल स्टाइल से टोटली डिफरेंट थी मैं उनको वो वैसी एक्सरसाइजेज नहीं करवाता था वॉइस की लेकर के फिजिकल नहीं करनी कुछ अपनी तरह से करनी मैं तो मतलब देखिए आपका आप हमारे अकाउंट देखो मैं जितने मतलब पॉपुलर टीवी एड्स और उनकी ट्यून्स और ये सब और आपने देखा होगा उनको इस्तेमाल करके मैंने उसको अपना बात तो अल्टीमेटली कहानी अपना आप किस तरह से एक एंड ऑफ द डे यू आर ए स्टोरी टेलर ना आपने अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचवानी है वो देखना लेकिन क्या डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हो वो आपने बच्चों को बिल्कुल बच्चे जिसमें अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें कुछ चीज उन पे इम्पोज नहीं की और फिर जाकर के जब ये काम कर रहा था लेट मी कंप्लीट माय वर्क विद चिल्ड्रन मैंने ये कोशिश की हाँ मैंने ये देखा कि अपने आप मुझे पहले नहीं सोचा था मैं आपके पास एक फ्रेश टीम बने लगी ऐसी टीम और वो और दर्शक कम थे दर्शक जुड़ने लगे जब बच्चा आपके साथ जुड़ता है तो बड़ा अडल्ट आएगा वो नहीं परवाह करता ठीक है मुझे एक्टर है मैं
परफॉर्म कर रहा हूँ, ना कोई ऑडियंस डेवलपमेंट में या और चीजें ऑडियंस बनाने में काम करेगा। बच्चा तो विल मेक इट अ पॉइंट। एक बच्चा जो नाटक कर रहा है तो वो कहेगा कि मैं तो अब स्टेज पे आने वाला हूँ। वो सबसे पहले एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बना करके देखेगा मेरी मम्मी साइड से कौन से हैं, मेरे पापा साइड से नानके कौन से हैं। हाँ, अच्छा, फिर मेरे क्लास में मेरे फ्रेंड्स कितने हैं, उन फ्रेंड्स में से कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को लेकर के आएंगे। तो एक बच्चा जो है 100 लोगों को लेके आता है। ऑडियंस बढ़ जाती है। ऑडियंस ऑडियंस नहीं, पर ऑडियंस फिर मैं जब नटरंग में हमने तरीका अलग रखा था, मैं थोड़ा हर चीज को कोशिश करता हूँ कि बच्चों का नाटक करते हुए ऑडियंस को, पेरेंट्स को टाइम टू टाइम उनके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ, एक डायलॉग एस्टेब्लिश कर पाऊँ और उन लोगों का थिएटर की तरफ रुझान बना पाऊँ। ये मेरा हमेशा हमेशा मुद्दा रहा है और उस मुद्दे को लेकर के मैंने काफी काम किया और मुझे लगता है कि नटरंग को आज एक वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन बनाने में बच्चों के थिएटर ने बहुत हेल्प करा है। बच्चों के थिएटर ने बहुत, और मैं सभी मतलब कई हर फोरम पे, तो मैंने कहा ना कि हर मतलब सैटरडे संडे तो मैं लाइव होता हूँ किसी ना किसी ओकेजन पे। तो मैं हमेशा ये उस ओकेजन को की अपॉर्चुनिटी पूरी तरह अवेल करते हुए सबके सामने ये मैं अपील करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, आपके माध्यम से आपके इस कार्यक्रम पे भी करना चाहता हूँ कि जितने लोग अगर थिएटर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके रीजन में थिएटर जिंदा रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका थिएटर एक सस्टेन्ड एक्टिविटी बन पाए, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग चिल्ड्रन थिएटर। और वो लोग जिनको लगता है कि उनका रोजगार कोई नहीं है थिएटर को लेकर के, दे तो नीड टू फर्स्ट कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट डूइंग चिल्ड्रन थिएटर। आज हमारे पास हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरे जम्मू को कवर किया है और हम लोग कर रहे हैं अभी और इसको बढ़ा रहे हैं। आपके यहाँ भी अपने रीजन में जाकर के अपने आप को पहले ट्रेन करें। बच्चों का थिएटर ऐसे नहीं होता, यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ। क्योंकि अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बहुत सारे सपने बेचे जा रहे हैं। हाँ, सपने बेचे जा रहे हैं। वैसे अभी को कितने लोग खरीदेंगे वो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है। और आर्ट्स जो है एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला है। मैं छोटा मोटा हिसाब लगा रहा था कि इस पूरे देश में 20,000 ट्रेंड थिएटर प्रैक्टिशनर्स की जरूरत रहेगी स्कूलों को आने वाले समय में। तो हमारे पास लोग कहाँ पे हैं, कहाँ है हमारे पास लोग जो सर मेरा बच्चों एक को थिएटर सवाल है। पढ़ा पाएंगे। जी जी ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 40-40 50-50 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਲਟਸ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ मतलब वो थोड़ी सी टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताऊं, आप 40 तक ले जा रहे हैं, मैंने तो 700-700 से किया हुआ, 800-800 से किया हुआ। क्या बात। हाँ, पूरा स्कूल, किसी जगह मैंने कैसे इवेंट किए हैं कि एक स्कूल के बच्चों को लेकर के किया हो इवेंट, तो स्कूल मर जाता है। मतलब क्या मैं कहना नहीं चाहता, मतलब ठीक है, मुझे टीचर्स की बहुत इज्जत है, सबकी इज्जत है, लेकिन ऐसे होता है ना जैसे लाइक क्या होता है, उनकी हवा निकल गई होती है। हाय हाय बच्चों को संभालते हुए चीख रहे हैं, ऐसे बाल उड़ रहे हैं, वो आंखें बाहर आ गई हैं, बच्चों को चीख चीख के गले फट गए हैं आपके, बोला जा नहीं रहा है। हाँ, इतने बच्चे संभाले नहीं जाते, लेकिन हम लोग थोड़ा एक मोटिवेशनल लेवल पे इस हद तक बात करनी कि मैं अकेला जाता था और 700 बच्चों को कहना कि मैं जरा ऐसे कुछ इशारों से कुछ कहता था, सब बच्चे चुप होते थे चुप और हो हम लोग जाते। इफेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अरे हम ऐसे, अरे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। हम लोग जब ट्रेवल करते थे तो जाने से पहले ना उनको सबको जैसे एक आप बच्चों, देखिए अगर आप बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं तो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। यू नीड टू डेवलप दैट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप जिस दिन आप डेवलप करेंगे, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ कि मेरा नाटक जा रहा था हैदराबाद और पेरेंट्स आते हैं तो रेलवे स्टेशन आएंगे सबको छोड़ने के लिए। अब मैंने कुछ अद्भुत करने का अलग अलग रहता था। मैंने कहा चलो इस बार कोई एक जोक बना के दिखाते हैं। अभी बच्चों के साथ, भाई देखिए बात सुनिए, हम क्या करते थे बच्चों के साथ ना, एक तय करता था। मैं कहता देखो भाई, अब इतने बजे, जैसे अभी बजे हैं जी 5, हाँ जी 5 से लेके 7 बजे तक हम लोग बोलेंगे नहीं बोला। हाँ बिल्कुल नहीं बोले, कोई नहीं बोलेंगे। कुछ भी हो जाए, कोई जो मर्जी पूछ ले, ये प्रैक्टिस करेंगे अपना चुप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। और आपस में पूरी सलाह होती थी। हमने इस बार क्या किया कि मैंने, देखो आप लोग जा रहे हैं, आप ऐसे थक जाओगे बातें बातें करते, पेरेंट्स आते हैं ना आपको बड़ा तंग करते हैं, कोई ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है। आपने क्या करना है कि जैसे अभी ट्रेन छूटने से 1 घंटा पहले से लेकर के ट्रेन छूटने के 1 घंटा बाद तक, ये 2 घंटे जो है ना बीच वाले, है ना, मान लो 7 बजे ट्रेन जा रही है तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम 2 घंटे का मौन करेंगे।
अच्छा। अब 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे क्या हैं, हो रहा है? पेरेंट्स छोड़ने आए हुए हैं, तो हम्म हमने डिक्लेयर कर दिया, मैंने कहा मोड स्टार्ट, तो कह हम्म दिया, सब बच्चे चुप हैं। कोई आकर के बोल रहा है अच्छा हो ठीक है तो अपना ख्याल हाँ रखना, तूने वो लाया, हाँ, तूने वो रखा है, माई में ही चल रहा है सारा कुछ। तो कुछ माइंड भी नहीं, सब हाँ। पूरे पेरेंट्स जो है परेशान है, हम्म यार क्या कर दिया, इस आदमी ने कितना मोटिवेट कर दिया है, क्या कर दिया। हम्म, मुझे लगता है वो एक लेवल तक, उस लेवल तक हाँ, तब जाना आपकी पड़ेगा। आप पहुंचोगे, वो आपके लिए हम्म कुछ भी करेंगे। हम्म, वो आप देखिए, मैं तो, हम लोग जम्मू में देखे 15 से 20 हजार बच्चों को हमने नेटरंग के साथ जोड़ के रखा था, और उन 15 से बीस बड़े। हजार बच्चों के 1-to-1 कम्युनिकेशन था, वन टू हम्म वन। और कई पेरेंट्स आकर के आपको अप्रोच करते हैं, आपको कहते हैं यार आप कहोगे तो ये काम हम्म, करेगा, वरना इसने नहीं करना। इतना प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है, इतना काम प्रभाव, करने, पर हाँ, प्रभाव बनाना पड़ता है, प्रभाव पड़ता आप, है। आज का बच्चा जो है ना, उसको बच्चा समझ के आप ट्रीट करोगे, वो कभी आपसे आपसे नहीं बनेगा। आपसे वो हम्म तभी इंप्रेस हो पाएगा जब आपकी चाइल्ड, मैं जो टीचर्स इस समय मेरे को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं हम्म उनको बताना चाहता हूँ, आपकी सिंसियरिटी उनको इंप्रेस कर सकती है। आज का बच्चा हम्म, बहुत क्लोजली आपको ऑब्जर्व करता है, और वो सही बात लगता है। है बच्चा बच्चा इस बात से नहीं है, पूरी हाँ। तरह से कन्विंस्ड है कि जो आप एज टीचर बहुत सिंसियर हो, एज टीचर बहुत ही कुछ नया चीज लेके आते हो, उसके बारे में सोचते हो, कुछ ऐसी चीजें करवा रहे हो, वो बच्चा कभी भी वो आपका मुरीद हो जाता है। लेकिन वो हम्म सिंसियरिटी लेवल, आपकी हरकतें, आपकी आपकी जो टोटल पर्सोना है, वो आपको बनाना पड़ेगा उसके सामने। सही अगर बात आप ये है, एक बनाने उसका में वेवलेंथ। नहीं है, तो आप जितना मर्जी डंडा लेके बच्चा नहीं, और मैं नहीं। डंडे का तो कल्चर ही नहीं है। और आपको मैं हम्म कुछ विदेशों में काम करने की बातें सुना दूंगा, तो आपने कहना हम्म अरे बाबा ऐसा होता है। हम्म आप आंखों का जैसे ना, एक नॉर्मल है ना साइज, उसे हम्म ऐसे नहीं कर सकते, जिस दिन आपने ऐसे हम्म किया ना, ये आप स्टेयर नहीं हम्म, कर सकते बच्चे को, आपको अच्छा, जरा भी बच्चे को एक प्लेजेंट आउटलुक माहौल के देना बियॉन्ड पड़े। नहीं, ऊपर या नीचे बच्चे को देख नहीं सकते। अगर जरा भी हम्म आपका पोस्चर बच्चे के लिए गलत है, तो उसी समय हम्म आप आपके ऊपर यू मे बी जेल्ड आल्सो। हम्म, उनके अब लेवल देखो पे। ना, दुनिया में जाके, विदेशों में जाके, आप यूरोप में काम करो, पता चलता, आप सही यूएस बात। में काम करो, फिर पता चलेगा बच्चों को हम्म ट्रीट कैसे करना है। सर, आपको एक बच्चों सवाल से आया। जी जी हाँ। हाँ सर, एक सवाल आया बलकार सिद्धू जी का। आपके हम्म, क्षेत्र की लोक धारा में से लोक रंगमंच कलाओं को उपयोग में लाकर बेहतरीन नाट्य प्रस्तुतियां तैयार की जा सकती हैं। प्रश्न है, क्या आधुनिक हाँ। सामाजिक जटिल समस्याओं के विषय पर पुरातन कलाओं को उपयोग में लाकर प्रस्तुति की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? आधुनिक कौन सी चीजें लगानी है? मुझे लगता है कि थिएटर, सबसे ज्यादा इफेक्टिव थिएटर वही है जो अपनी मिट्टी से निकला हुआ है, और हम्म वो जो अपनी आपकी भाषा में है, वो आपके संगीत में है, आपकी लोक कलाओं में है, और उन्हीं हम्म से चीज निकलेगी। दो चार चीजें हम करेंगे, एक तो पहला, हम अपना विरसा बचा के रखेंगे। हम्म सेकंड ये है कि इसका जो कम्युनिकेशन जो फोक के माध्यम से करते हैं, वो इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारी भाषा भाषा हमारी संस्कृति जो है, वो संस्कारों से हमारे अंदर आई है। जैसी वो चीज बचती है, जो चीज आपके सामने होती है, वो आपको अंदर और आपके दिल को, आपकी आत्मा तक पहुंचती है। फोक ट्रेडिशन, आपकी भाषा, ये बहुत बड़ी ताकत है। और वो मैं बिल्कुल, देखिए मैं पढ़ा, बेशक मैं पूरी दुनिया का थिएटर पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा थिएटर वो लगता है जो आपके आपकी मिट्टी से लैंग्वेज। निकला हुआ है। हम्म लैंग्वेज आपकी आपकी भाषा में, आपकी संस्कृति से हम्म जुड़ा हुआ है। और हम सब लोगों को भी, अगर अगर थिएटर को पॉपुलर हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पंजाबी थिएटर घर घर पहुंचे, गांव गांव हम्म पहुंचे, तो सबसे हम्म पहले हमें लोगों को अपनी, वी नीड टू गो बैक टू अवर रूट्स। हमें अपनी हम्म, रूट्स में जाकर के वहां से काम शुरू करना पड़ेगा, कर तभी। वहीं से थीम्स उठाने पड़ेंगे। फोक हम्म में इतनी इलास्टिक, जरूरी थोड़ी है कि हमें वही आध्यात्मिक कहानियां ही हम लोग फोक के द्वारा कर सकते हैं। हम्म, फोक में इतनी इलास्टिसिटी है, हमारे फोक के ऊपर तो दुनिया रिसर्च कर रही है, और सही हम लोग बात है हैं कि सर, अपने फोक को छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे ये हैं। कॉम्प्लेक्स, हाँ, ये लोगों को कॉम्प्लेक्स है कि आप फोक में काम करेंगे, अपने अपनी आंचलिक भाषा में काम करेंगे, तो आप बड़ा कोई इंफीरियर काम कर रहे हैं। मैं ये हम्म अपने जो जितना मेरा अपना एक्सपोजर है लाइफ का, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप फोक में काम करेंगे तो ही कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, सही मॉडर्न बात कह रहे हो मॉडर्न सर। मॉडर्न पर मॉडर्न हमारा जो है, वो हमारा हम्म इतना रूटेड नहीं है हमारे हमारे कल्चर के साथ। तो हम्म आपको मॉडर्न
जो लोग बड़े मॉडर्न बनने के चक्कर में हैं, उनको वो वो तो आज अपना भी जो ब्रॉडवे में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उससे तो आप रिलेट नहीं कर सकते। उस लेवल का हुँ, आप तामझाम जुटा नहीं सकते। आप हुँ, ना उधर के ना उधर के। उधर के। सर हमारे लिए पॉसिबल। जी, जी, जी। हाँ, हुँ, सर मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ, कुछ तो मेरे को पता दर्शकों को बताइए कि जो आपकी दोनों हाँ, बेटियाँ हैं, वो भी थिएटर हाँ। करती हैं? उनका क्या हाँ रुझान है जी, थिएटर के प्रति? बिल्कुल, बिल्कुल। रुझान क्या, थिएटर करती हैं, रुझान तो करती है हैं? ही नहीं है। हाँ, मतलब देखिए, मैंने कोई इम्पोज़ नहीं किया, हुँ, बाय चॉइस करती हैं। मेरी हुँ। बड़ी बेटी यूके में सेटल है, और वो बर्मिंघम में एक थिएटर कंपनी में काम करती है, अच्छा वहाँ भी बर्मिंघम थिएटर थिएटर। करते हैं? अरे! नौकरी कर रही है। हाँ, बर्मिंघम अच्छा। थिएटर रेperटरी, जो बहुत बड़ा रेperटरी हुँ, कंपनी है बर्मिंघम का, उसमें वो काम करती है। शी इज़ वन ऑफ द लाइक प्रोडक्शन टीम में जो डायरेक्टर्स होते हैं, शी इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर देयर। और ओके। मेरी छोटी बेटी जो है, उसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही है इस समय, और हुँ, एक्टर है, और हाँ। एक्टिंग करती है। और घुमाई जो नाटक जिसकी बड़ी चर्चा होती है, उसमें हुँ, हुँ, 3-4 लड़कियाँ जो हैं, वो मतलब हमारे यहाँ जो जो मेरे सिग्नेचर प्रोडक्शंस नटरंग के जो बड़े प्रोडक्शंस हैं, उसमें किसी नाटक में एक एक्टर काम नहीं करता है, मतलब मेन लीड में हुँ, बहुत सारे लोग हैं, हुँ। बारिंग फ्यू कुछ ऐसे रोल्स हैं जो हमें उनका अल्टरनेटिव नहीं मिला, तो वही लोग कर हुँ, रहे हैं। बाकी डबल रोल। उसमें जो 3-4 लड़कियाँ जो दुल्हन बनती हैं, उसमें जो मेन हुँ, लीड है उसका, तो उसमें एक दुल्हन वो भी है। हुँ, अच्छा। अच्छा सर जो आप लीड। अब हाँ, अफ्रीका में हो हाँ जी। हाँ, तो साउथ अफ्रीका में। वहाँ का थोड़ा-सा हाँ, साउथ अफ्रीका में, तो आप मुझे हुँ, वहाँ का थे मुझे नहीं हमारे सारे दर्शकों को बताएँ थोड़ा थिएटर का हुँ, क्या पर्सपेक्टिव है वहाँ पर? कैसा हुँ। इंडिया से तो नहीं हम मुकाबला कर सकते, पर फिर भी हमें उसका एक नहीं, नहीं, थोड़ा-सा मुकाबला हमारी अपनी, देखिए हम लोगों की सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, हुँ, और उसको लेकर के हम लोगों को अपने आप को इन्फीरियर कहना शुरू कर देते हैं। हमने अपनी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश नहीं की, हमने ऑडियंस नहीं बनाई, और फिर रो धो के कुछ नहीं होता। वी नीड टू वर्क। जितनी खूबसूरती, जितनी कलाओं की विविधता, जितनी कलाओं की डाइवर्सिटी, और जितनी रिचनेस हमारे पास है, दुनिया में कहीं नहीं है। हुँ, लेकिन चूँकि ये है कि साउथ अफ्रीका की बात करूँ मैं, साउथ अफ्रीका जो है ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में था, और बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। अब भी उनके कंट्रोल में, ये इकोनॉमिक्स तो हुँ, अभी भी यहाँ पे गोरे ही चला रहे हैं। अच्छा। बिज़नेस सारा गोरों के पास है, पूरे हुँ, साउथ अफ्रीका का। लेकिन चूँकि पहले तो रूल भी यही लोग करते थे, तो 95 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। और एक समय में, ये मैं अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ कि अंग्रेज़ों का ये मन था कि उन्होंने शायद साउथ अफ्रीका सेकंड यूके बनाना है। इसलिए उस हुँ, तरह का डेवलपमेंट यहाँ आपने अपनी सारी चीज़ें लाई उन्होंने। हुँ, मतलब कई सतह से अगर आप देखो, तो यूके से भी ज़्यादा डेवलप्ड साउथ अफ्रीका है। हुँ, और यहाँ पे वो जब ये लोग गोरों का ये था कि ये जब जहाँ जाते थे, अपने साथ अपनी कल्चर, अपनी चीज़ें, और यहाँ जो थिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा है। जोहानिसबर्ग शहर जो है, चंडीगढ़ तो बड़ा नहीं होगा। अ, अच्छा। मतलब आबादी के हिसाब से कह रहा हूँ, आबादी बहुत कम हुँ, है, ऐसे मतलब खुली जगह हैं, खुले-खुले हुँ, घर हैं। ज्योग्राफिकली जो एक ज़्यादा है एरिया, हाँ, आबादी कम और है। मतलब 6 करोड़ तो आबादी है इस पूरे देश की। तो अच्छा, सोच लीजिए आप क्या है, तो कितना होगा? जोहानिसबर्ग हाँ, शहर जोहानिसबर्ग शहर चंडीगढ़ से बड़ा नहीं हो सकता। आबादी में ओके। भी तो बहुत कम होगा, और एरिया वाइज़ जोहानिसबर्ग बड़ा है, लेकिन हुँ, आबादी में तो मुझे लगता है कि अराउंड 75 थिएटर्स हैं। 75 हाँ, तो अच्छा। अब ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता मैं, तो आप हुँ, पूरे नहीं, नहीं, चंडीगढ़ नहीं में बताइए कितने हैं? चंडीगढ़ में कितने हैं? एक ये ही तो बताइए। है, हाँ, टैगोर है हाँ। या कला भवन है। हाँ जी। तो ये, और कला भवन या टैगोर का भी देखिए, हुँ, अब रेनोवेट करके कितना वो, मतलब वो जो हाँ, जितना अच्छा उसका इफेक्टिवनेस है, क्योंकि मैंने प्री रेनोवेशन के दिनों को भी मेरे देखा है, दिमाग में बहुत है, तब बहुत भी इंटीमेट देखा था वो। बहुत नाटक। हुँ, बहुत वो तो तब थिएटर था, अब हाल बन गया हाँ, है। बिल्कुल सही बोल रहे और सर। हाल नहीं, बेहाल हो गया अब। हाँ? तो कमर्शियल ये पॉइंट ऑफ देखिए, व्यू से। आप देखिए, और उसमें भी जो 75 थिएटर्स हैं जोहानिसबर्ग में, हुँ, एक-एक मल्टीप्लेक्सेस हैं। जैसे आप जोबर्ग थिएटर है, जोबर्ग थिएटर कहते हैं। हुँ, जोहानिसबर्ग थिएटर को जोबर्ग थिएटर नाम से जानते हैं। तो जोबर्ग में 6 थिएटर एक साथ हैं। 6 तो अब जब अंदर घुसते हुँ, हैं, तो आपके हुँ, सामने फ़िल्म की तरह बोर्ड लगा हुआ है। नाटक कौन-सा का।
किसमें क्या शो हो रहा है, किसमें क्या शो हो रहा है, किसमें क्या क्या शो हो रहा बात। है। एक बड़े साइज का ऑडिटोरियम है जिसमें हम्म 2000 सीटिंग कैपेसिटी है, तो उसमें बड़े बड़े म्यूजिकल्स ब्रॉडवे टाइप हो रहे होते हैं। कुछ में हम्म छोटे हैं, कुछ में बिल्कुल छोटे हैं। मतलब ऐसा ऑडिटोरियम भी है जो 100 सीटिंग कैपेसिटी का है, 100 से भी कम वाले भी हैं। तो बड़े इंटीमेट किस्म के परफॉर्मेंसेज, एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के बड़े अच्छे ऑडिटोरियम्स है। यूनिवर्सिटी, एवरी हम्म यूनिवर्सिटी है, यहाँ 6 यूनिवर्सिटीज जोहान्सबर्ग शहर के अंदर है, जो बहुत बड़ी हम्म, बड़ी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी रैंकिंग टॉप 100 में मतलब आती है। 50 के बीच में, 50 में आती है, टॉप 50 में अच्छा। आती है। हाँ, हम्म यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग बहुत फेमस है, विट्स यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है यहाँ की। और हर यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रामा डिपार्टमेंट है, आर्ट्स के ओह। डिपार्टमेंट हैं, और उनके हम्म एक्सपेरिमेंटल रिपर्टायर्स हैं, उस तरह का हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड देयर इज अ ह्यूज सपोर्ट फॉर ऑल दीज। अब हम्म क्योंकि ये इन दिनों जब कोविड के चलते सारे थिएटर सब कुछ बंद हुआ है, तो मैंने एक अनाउंसमेंट सुना था कि 1 हम्म साल के लिए यहाँ पे एट पार सारे थिएटर ग्रुप्स को, जो थिएटर कंपनीज यहाँ पे जहाँ एक्टर्स इन्होंने एंगेज करे हुए थे, टेक्नीशियंस हम्म, एंगेज किए थे, कि हेलो। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये यहाँ की इकोनॉमिक्स को, हम्म इकोनॉमिक्स जो है इस पे डिपेंड है। हम्म, सही बात। हाँ। मतलब जो देखिए, ये इंडिया, अपने देश की कुछ चीजों को हमें ज्ञान होना चाहिए कि इंडिया इज द हम्म लीस्ट विजिटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हम्म टूरिज्म के हिसाब से, जो हमारा हम्म दुर्भाग्य है। पर ये हम्म, दुर्भाग्य हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम बदल पाए। हाँ, और आर्ट स- कल्चर हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल का होता तो आते हम्म यहाँ। ये सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं। केप टाउन देख लीजिए, हम्म प्रिटोरिया देखिए, जोहान्सबर्ग देखिए, डरबन देखिए। तो ये इन लोगों के जो टूरिज्म अट्रैक्शन है, वो वहाँ का आर्ट एंड कल्चर भी है। आप हम्म, आपके तो टूरिस्ट मैप में सारे थिएटर्स की वो भी होंगी, और इनका लिस्ट होगी। इकोनॉमिक्स इस पे डिपेंड करता है। हम्म लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी मेजर प्रोडक्शंस जो है दुनिया में, जो और जगहों पे होती है, यहाँ पे भी होती हैं। हम्म। तो सर, एक बात मैं आपसे और करनी चाहती थी। आप जब भी कोई प्ले करो हमारे हम्म, पंजाब में, खासकर पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हम्म। में तो आप आते, पंजाब में जरूर आइएगा प्लीज। और दूसरी बात, दूसरा आई मेरा, वुड लव टू गो, आई वुड लव टू गो ट्रैवल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਛੋਟੀ छोटी ਹੈ। है। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਡੋਗਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਡੋਗਰੀ ਵਧੀ, ਡੋਗਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ सर ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ, ਕਮਲ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਡੇਜ਼ ਵਿਦ ਬਲਵੰਤ ਠਾकुर, और मैं अच्छा। अपने 6 प्रोडक्शंस लेके उसले गया सी, 6 नाटक। तो वो इस तरह का कि अगर वो इस तरह का फेस्टिवल अगर ट्रैवल करे हाँ सर, सानू जरूरत है पंजाब पंजाब विच दी। लिया जी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੌਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਧੂਪ ਕਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਪੀਐਸ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚ ਸਕੂਲ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਚ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਮਨ ਕਾਲਜ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, 9 ਵੱਜ ਵੀ ਗਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਅੱਛਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਥੀਏਟਰਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਅਜੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗਾ? देखिए जी, पहली चीज ना, नेवर बी हाफ हार्टेड।
पूरे देश ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਆਓ ਪਾਗਲਪਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਅਵੇਕਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो मैं नहीं समझता कि थिएटर तो बेहतर कोई एक प्रोफेशन है दुनिया का जो तुम एक बेहतर इंसान ना बनाए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਡਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਥੀਏਟਰ ਮੇਕਸ ਯੂ ਮੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਪੜੋ ਸਿੱਖੋ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲੇ ਕਟਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ हाँ like you will be lost in that crowd और आपके अंदर अगर वो सलाहियत है अगर आप अपने आप को उस लेवल पे ट्रेन कर सकते हैं तो आप देखिए मैं क्या कहता हूँ कि जो बहता हुआ दरिया है राह बना लेगा अब वो बहते दरिया बनो ना अपने आप आपके रास्ते बनेंगे लोग आपके अंदर इतना कोई आउट ऑफ वर्ल्ड टैलेंट है आपके पास दुनिया आएगी खुद आपको जंगल में मोर नाचा किसने देखा वो बहुत पुरानी कहानी थी अब जंगल में मोर चाहिए पूरी दुनिया देखेगी आपको आज इंटरनेट का जमाना है आप कुछ अच्छी चीज करते हैं यूट्यूब पे डालते हैं पूरी दुनिया देखती है नोबडी कैन स्टॉप यू अच्छे टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता प्रोवाइडेड हम अच्छा टैलेंट बनने की कोशिश करें बिल्कुल सर हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं मैं सवाल तो नहीं लूंगी लेकिन उनका जिक्र जरूर करूंगी अरविंदर कौर इंद्रजीत सिंह पाटिया उनको एक्नॉलेज करना जरूरी है जी हाँ वही सर शुभम लखविंदर कौर सग्गू तानिया देव गुप्ता बॉब संधू हरमीत सिंह चंद्रबी तानिया तो बॉम्बे में है तानिया इज अ वेरी फेमस सिंगर अरे आपके बहुत बड़े लोग जुड़े हैं अरे बहुत अरे शी इज अ सेलिब्रिटी सिंगर और मैं आपको बताना चाहता हूँ तानिया का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जब अभी लास्ट एशियाड हुआ था चाइना में तो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में इस लीड सिंगर यही थी क्या बात है कांग्रेट्स मैम आपको थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े इस मंच पे हरमीत सिंह चंद्रा बी परमजीत सिंह सुमित शर्मा ड्रामेटिक्स हाँ सुमित जो है ड्रामा के हेड हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में अच्छा हाँ वो भी वेलकम सर आपका मास्टर्स इन ड्रामेटिक्स फ्रॉम इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ और ये युवा बिस्मिल्लाह खान अवार्डी हैं अच्छा अरे इसके संगीत नाटक एकेडमी के ठीक है सर फतेह सोही गुरदीप पहेश गौरव भतीजा लखा लहरी सर मेरे हस्बैंड हैं अरे वैसे थिएटरिस्ट है पहले थिएटरिस्ट है रमन ढिल्लो अटवाल धालीवाल गुरप्रीत कौर पंगू भुपिंदर सुरेश मेहता बॉब संधू सारिका सूद क्या बात और बलकार सिद्धू जस्सी जसपाल सिद्धू तो बहुत सीनियर आदमी हाँ जगमीत कौर करता हाँ जी जगजीत श्रीन जी स्वीटी शर्मा नीरज कांत शर्मा अच्छा नीरज जी तो ये बहुत मेरे जितने हमारे नटरंग का जितना काम है वो सारा नटरंग का इस समय हेड है हमारी रेपर्टरी के ओके वेलकम सर आपका भी नीरज जी आपका वेलकम जी हाँ जी सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਗੱਲਾਂ ਛੂਈਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਦਿੱਤਾ नहीं कोई बात ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਕਨਸੀਲ ਆਰਟ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸੁਚੇਤਕ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ